DHCP is based on the BOOTP protocol for automatic assignment and maintaining some backward compatibility. The main difference is that BOOTP was designed for manual pre-configuration. BOOTP के through आप manually configuration कर रहे होते हैं, while DHCP allows for dynamic allocation of network addresses. Reverse hop is a protocol that used by Sun systems and other vendors that allows a computer to find out its own IP number, which is one of the protocol parameters that typically pass to the client system by the DHCP or BOOTP. So reverse hop does not support other parameters, and using it, a server can only serve as a single LAN. So DHCP and BOOTP are designed so that they can be routed there. Can DHCP support statically defined addresses? यानी DHCP थ्रू क्या आप static IP दे सकते हैं? Yes, at least there is nothing in the protocol to preclude this, and one expects that it can be a feature of any DHCP server. How does DHCP and BOOTP handle multiple subnets? जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा LAN एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ हर सबनेट में अलग अलग DHCP सर्वर है. तो इट्स बेटर कि आप जो है वो कलेक्टिवली एक DHCP सर्वर मैनेज करें और अलग अलग सबनेट्स में जो BOOTP रिले एजेंट होंगे वहाँ BOOTP फॉरवर्डिंग इनेबल करते हैं. Can a BOOTP client boot from a DHCP server? Yes, only if the DHCP server is specifically written to handle the BOOTP queries. अगर वहाँ आपने allow किया हुआ है कि BOOTP की queries को handle करेगा. Can a DHCP client boot from a BOOTP server? Only if the DHCP client were specifically written to make use of the answer from a BOOTP server. So it would presumably treat a BOOTP reply as an unending lease on the IP there. Can a DHCP client or a server make a DNS server update the client DNS entry? RFC 2136 and 2137 indicate a way in which DNS entries can be updated dynamically via BOOTP or DHCP. Can a DHCP server back up another DHCP server? Yes. Can have two or more server handing out leases. तो वहाँ backup के तौर पे भी use कर सकते हैं. If each has a dynamic pool accessible to the same client, then even if one server is down, one of those clients can lease an address from the other server there. So, however, without communication between the two servers to share their information on current leases, when one server is down, any client with a lease from it will not be able to renew their lease with the other server. So when will the server to server protocol be defined? So that is the standard of the using the IETF, that is Internet Engineering Task Force. तो जब आप DHCP मैनेजर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऊपर सर्वर आ रहा होता है, यहाँ पे आप जाके ऐड करेंगे. तो फिर आप जो भी डेजिग्नेटेड सर्वर बना रहे हैं उसका आप IP यहाँ पे स्टैटिकली देंगे और फिर आप उसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो उसका ये स्कोप में जाएंगे. स्कोप में जाके पहला ऑप्शन होगा क्रिएट स्कोप पर. क्रिएट स्कोप खोल करेंगे तो ये आपके विंडो खुल जाएगी. अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक पूल बना रहे हैं कि जो IP वो लीज करेगा उसका स्टार्टिंग पूल क्या है 192.168.3.1, उसका एंडिंग एड्रेस क्या है 192.168.3.254, यानी 1 से लेके 254 की आपने एक रेंज डिफाइन कर कि जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास आएगी वो इनमें से IP जो फ्री होंगे वो देता रहेगा. सबनेट मास्क के ये क्लास आपने यूज की है तो उसका आपने सबनेट मास्क डिफॉल्ट दे दिया. फिर यहाँ इनमें से कौन से वो IP हैं, अगर वो आप कहते हैं 192.168.3.
.10 से लेके .20 तक ये एक्सक्लूड रहेंगे या असाइन नहीं होंगे। इनको आप फिक्स आई की कॉपी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो रेंज आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं 192.168.3.10 .15 .20 .27 .29 ये वो आईपीज हैं जो आप एक्सक्लूड करें, तो इनको वन बाय वन यहाँ पर आप ऐड करेंगे और एक्सक्लूडेड की एड्रेस रेंज में डालते जाएंगे। फिर आपके भाई यहाँ लीज ड्यूरेशन है कि आप उसको अनलिमिटेड आईपी दे रहे हैं या कितने डेज कितने आवर्स के लिए आप दे रहे हैं। फिर आप जो आपने सर्वर बनाया है उसका आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज लेंगे, तो आपके सामने उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं ये टोटली इस सर्वर पे टोटल एड्रेस स्कोप 254 का था, और जो एक्टिव लीजेज हैं 43% हैं और जो अवेलेबल हैं वो 56% है। फिर जो जो क्लाइंट को आईपीज आपने दी हैं उन क्लाइंट की आप अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम बाय आईपी, डिलीट कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी क्लाइंट की आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके पास जो है वो उसका आईपी आ रहा होगा, उसका आइडेंटिफायर नंबर आ रहा होगा और उसका लीज एक्सपायर कब होने वाली है वो पीरियड आ रहा होगा। आप मल्टीपल स्कोप और बना सकते हैं, एक सर्वर बना सकते हैं। आप किसी कॉन्फ़िगरेशन को उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। राउटर के विंडोज़ की जो सर्वर पीस को ऐड कर सकते हैं, उसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ DHCP टॉपिक। मैं भी आप